your palate. Imagine your God, your Guru in front of you. Mentally repeat after me. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to our Guru, to all the Holy Gurus, Holy Saints, Archangels, Holy Angels, and spiritual helpers, to all the beings of love and light, divine self, our soul and divine self. Hope for a divine guidance, divine healing, health, protection, purity. We invoke for our blessings to be a divine channel, learn and understand the deep techniques and teachings, manifestation of Kriya Shakti. We invoke for our blessings to, to for purification, for manifestation, and to tremendous good energies in our. We thank you for our blessings with deepest gratitude, respect, and love. We thank you in full faith. We thank you. Now you all may open your eyes with a big smile. Thank you very much. Happy Namaste to all. Happy Namaste. So, thank you. So, about the homework, Carmen, have you done your homework? But you said. But you didn't share the last slide to everybody to the group. So, I shared. I erase all the poverty. This was not shared. I shared. Okay. Maybe. So वंदना जी, अंशु जी और नीता जी प्लीज अपना वीडियो ओपन करें. अगर आपने ओपन किया है तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा. Okay. It is. They are 3 slides. Yeah. Before the last one that I put. Last one, I just increase it and put it again. They are on top. So आप सभी ने जो किया चेंज आपको लगा, आपको कुछ चेंज समझ में आया? Have you got the change after you scanned and used the technique of erasing technique? कहाँ से शोर आ रहा है इतना? बहुत शोर हो रहा है. शिखा जी आप अपना हम कर देंगे, म्यूट हम कर देंगे. ओके, ठीक है, हो गया. I received. Okay, so we saw the change. किसी ने अपना चेंज किया. इरेजिंग टेक्निक की आज्ञा पे यहाँ तक के कुछ सिर्फ आज्ञा चक्र बेसिक चक्र में कोई चेंज समझ में आया. So you saw the. I'm happier. Madhvi ji, Helped. Yeah. I think in each coffee helps you a lot. Yeah. कल शायद जी कल शायद नहीं था, पर वीडियो ऑन नहीं था पर नहीं मैं कल नहीं आ पाई. ओके, सो कल किया थोड़ा देखा आज पूरा. ओके, उसमें एक होमवर्क था. इरेजिंग टेक्निक था, स्लाइड्स दिया हुआ था. स्लाइड्स कार्मेन ने शेयर किया था, उससे सभी को करना था. और उससे हम अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं, अपने थॉट फॉर्म में, अपने मेंटल स्टेटस, मेंटल जो हमारी बॉडी है उसमें चेंजेस ला सकते हैं. साथ ही साथ बहुत सी चीज़ों को हम उसमें चेंज कर सकते हैं. आज करूँगा. आज प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा और फिर हम आगे देखते हैं क्या करते हैं. श्योर. सो लेट अस स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन. I'm starting from the last slide from yesterday. Clarifying your mind leads to faster materialization. Please scan your Agya Chakra. Now touch your Agya Chakra and say, I erase all poverty consciousness from my memory. Now. So wait. Have the screenshot of this slide and share it into the group. Hope it's done now. Let us move forward. We can practice one more time. Touch your Agya Chakra from the 3 fingers of your right hand. Close your eyes.
अपने हम इस प्रैक्टिस करते हैं। अपने दाहिने हाथ की 3 उंगलियों से अपने आज्ञा चक्र को छुएं और बोलें, I erase all poverty consciousness from my memory. Erase like with your left hand, अपने बाएं हाथ से इरेज करें, मिटा लें। बोलें, मैं अपने सारी गरीबी की चेतना को अपने मेमोरी से निकाल रहा हूँ, निकाल रही हूँ। अभी अभी अभी, नाउ नाउ नाउ, सो इट। ऐसा ही नाउ नाउ स्कैन योर आगे चक्र, फील योर आगे चक्र। सामने से अपने आगे चक्र को स्कैन करें, फील करें कैसा लग रहा है। अच्छा समझ में आ रहा, समझ में आ रहा। इफ यू आर नॉट फीलिंग समथिंग चेंज, just do it again, practice it again. Put your hands on your 3 fingers on your Agya Chakra. Erase all poverty consciousness from your memory. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिर से अपने 3 उंगली को और अपनी सारी गरीबी की चेतना को अपने मेमोरी से निकालें। आपकी उम्र जितनी है उतने सालों से। What is your age? Just think of your age, and from the beginning of your child, erase all the memories. Erase all the memories. From my childhood till today, I am deleting, erasing all the consciousness, my poverty consciousness. बचपन से लेके आज तक मैं अपने हर प्रकार पूरे जीवन की सारी गरीबी की चेतना को मिटा रहा हूँ। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। Erase. So be it. So be it. So be it. Flick your hands. Okay. Now, throat chakra. कंठ चक्र पे आते हैं, जिसे हम विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। थ्रोट चक्र इज सेंटर फॉर क्रिएटिविटी, सेंटर फॉर थिंकिंग एंड थॉरोनेस ऑफ डिटेल। सॉरी थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र, ये क्रिएटिविटी, सृजनता का चक्र है। साथ ही साथ कंक्रीट थिंकिंग, ऐसा सोच उसको जो हम उसको मूर्त रूप देते हैं, पूर्ण रूप से उसे कार्य, और साथ ही साथ आते हैं, और साथ ही साथ किसी भी चीज़ के डिटेल में जाना, जैसे कि मकान तो सीमेंट बालू या वो उसकी डिटेल में, किसी भी चीज़ की डिटेल में जाना, तो थ्रोट चक्र इस डिटेल का भी चक्र है। सो स्कैन योर थ्रोट एनर्जी सेंटर। थ्रोट चक्र, imagine your throat chakra here and scan the energy of throat chakra. Imagine, पहले इमेजिन करें। फर्स्ट स्कैन योर थ्रोट चक्रा, फील द डिस्टेंस, फील द मीटर और एनर्जी। डन हुआ, सभी का हुआ। प्लीज़ आप बोलिएगा, क्योंकि पीपीटी के कारण मुझे दिखाई नहीं दे रहे। फील द एनर्जी ऑफ द थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्र की एनर्जी काफी हाई है। अगर है ठीक है, अगर है जो भी को आप खाली नोट कर लें कितना है, ठीक है। So scale the energies of your throat chakra. Now we are going to practice something. So please touch your throat chakra first, and then your Agya chakra. With your right hand, 3 fingers of your right hand, touch your throat chakra like this. Throat chakra is here. Hi, Bruno. Touch your throat chakra. Now touch your Agya chakra and say, पहले अपने कंठ टच करें, फिर अपने आप और बोले I erase negative or obstructing thought forms that prevent me from becoming very very successful right now. मैं अपने हर प्रकार के नकारात्मक बाधा युक्त विचारों को इरेज करता हूँ, जो मुझे सफल बना। अभी 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 अभी, ऐसा ही हो।
I erase all negative obstructing thought forms that prevent me from becoming very, very successful. Now, now, now. अपनी आंखें बंद रखें. Keep your eyes closed. Feel the negativity, feel negative obstructing thought forms. तो अपनी आंखें बंद रखें और सकारात्मक, नकारात्मक, रुकावट वाली विचारधाराओं को कल्पना करें और उसे मिटा दें. महसूस करते रहें, महसूस करते रहें. And erase, keep on erasing. Erase, erase, erase. Now, so wait, so wait. Pick your hands, pick your hands. Again, scan your throat chakra. वापस अपने थ्रोट चक्र को स्कैन करें एंड सीधे चेंज. तो चेंज लगा, बड़ा हुआ, छोटा हुआ, यस या सर. एनर्जी कैसी हुई? सर मेरा थ्रोट चक्र बैलेंस हो गया. बैलेंस हो गया, ठीक है. तो सिर्फ देखिए, सिर्फ ठीक हो गया. सिर्फ इसी टेक्निक से ठीक बैलेंस हो जा रहा है या ठीक हो जा रहा है. दैट मीन्स कि हमें यही कर लें तो बाकी काम ही खत्म. हीलिंग करने की जरूरत ही नहीं है. हमारी थ्रोट चक्र काफी बड़ा था क्योंकि मे बी तो वहाँ पे थॉट फॉर्म तो किए हुए होंगे, तो आपने सिर्फ इरेज किया ऑब्स्ट्रक्टिंग थॉट फॉर्म्स को, वो ठीक हो गया. तो ये टेक्निक भी है, हम यूज़ कर इरेजिंग टेक्निक टू बैलेंस आवर चक्रास. Carmen, have you the energy of your throat chakra? Have you got the energies of your throat chakra? They got increased 2 inches. Okay, fine, good. What is the quality of energy? Have you sensed it? Oh, no. I Fine, no worries. look at the quality, quantity. किसी को क्वालिटी समझ में आई? एनर्जी की क्वालिटी कुछ या नहीं समझ में? ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर समझ में आया तो प्लीज बताएं. हाँ, मेरे को लगा ना मेरा कुछ टिंगलिंग ज्यादा हो रहा है. अभी तो दोनों में डिफरेंस था कुछ कि अभी टिंगलिंग ज्यादा हो रहा है, पहले नहीं. अभी ज्यादा हो रहा, पहले सॉफ्ट था. और अब यानी कि और भी इरेजिंग चाहिए उसमें. ओके, और भी इरेजिंग चाहिए उसमें, क्योंकि अभी पहले सॉफ्ट था, फिर टिंगलिंग हुआ. क्लीनिंग चाहिए कि उसको और क्लीनिंग चाहिए और अच्छे से नेक आराम मिले, ठीक है, उससे आराम मिले, उससे और ठीक एनर्जी में आ जाएगी एनर्जी. ओके, सो नाउ हार्ट चक्रा. सो फर्स्ट, heart chakra is the center for compassion, concern for others, needed to generate good karma and have harmonious relationship with others. हृदय चक्र, इसे अनाहत चक्र भी कहते हैं. ये करुणा, प्रति चिंता, दूसरे के प्रति चिंता के लिए सेंटर है, उसका केंद्र है. और अच्छे कर्म को जनरेट करने के लिए, उसे बनाने के लिए आपको बड़े दिल वाला होने की बहुत आवश्यकता है. तो उसके लिए आपका हृदय चक्र आवश्यकता है, अच्छा होने की आवश्यकता है. साथ ही साथ दूसरों से अपने संबंधों को लिए हार्मोनियस बनाने के लिए, जो संबंध करते हैं, मधुर संबंध रखने के लिए बहुत आवश्यक है. सो इट इज़ नीडेड फॉर जनरसिटी टू हैव हार्ट कर्मा एंड हैव हार्मोनियस रिलेशनशिप विद अदर्स. बड़े दिल का मतलब दिल बड़ा ना हो जाए, आपके इमोशन से दिल बड़ा रहे. द सीक्रेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज इट इज़ इन गिविंग दैट यू रिसीव. तो प्रॉस्पेरिटी का सीक्रेट क्या है, रहस्य क्या है? जो हम देते हैं वो हम पाते हैं. तो हम बड़े दिल के साथ दूसरों को हम पाएंगे, देंगे वही हम पाएंगे. सो प्लीज टच योर, ओके, फर्स्ट स्कैन योर हार्ट एनर्जी सेंटर. अपने सबसे पहले अपने हार्ट को टच कर स्कैन. अपने हार्ट को टच करें और स्केल करें कितना है हार्ट.
and scale the energies of heart. Done? Yes, sir. So now touch your heart. So so इससे from the pads of the fingers touch your heart like this, not like this, like this. हाथ के कोर से नहीं, पैड से टच करना है. तो अपने हाथों से टच करें पहले. टच द हार्ट सेंटर फ्रॉम योर पैड्स ऑफ योर फिंगर्स नाउ एंड से आगे चक्रा एंड से. फिर आगे चल को टच करें, बोलें आई इरेज आई डिस, मैं मिटाता हूँ, मैं पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न करता हूँ. ऑल नेगेटिव एटीट्यूड्स एंड इमोशंस, हर प्रकार के नकारात्मक विचार व भावनाएं. एटीट्यूड मतलब हमारा, एटीट्यूड का एग्जैक्ट मीनिंग हिंदी में खोजना पड़ेगा. सो एटीट्यूड मान के चलिए प्रतिक्रिया शायद. ऑल नेगेटिव एटीट्यूड्स एंड इमोशंस प्रिवेंटिंग सक्सेसफुल, बिकमिंग वेरी वेरी सक्सेसफुल. हर प्रकार की नकारात्मक भावनाएं व हमारे एटीट्यूड जो मुझे सफल होने से रोकती है. फेज आई डिसइंटीग्रेट, मैं मिटाता हूँ, मैं पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न करता हूँ. नाउ अभी ऐसा ही हो. I erase, I disintegrate all negative attitudes and emotions, preventing me from becoming very, very successful. Now. So wait. Click your hands. Now again, please scan your heart. See the change, feel the change. Record the change. It is almost. Yeah. And what is the change in emotions? Because you are erasing your negative emotions and attitude. So how are you feeling? How's your emotion? My mind said while doing it, so I don't know. Mom, attitude in Hindi is means रवैया या अभिवृत्ति या व्यवहार मनोदृष्टि को आगे. तो रवैया ठीक है, रवैया या अभिवृत्ति, एटीट्यूड. तो कुछ चेंज मिला, कुछ चेंजेस दिखे, अच्छे या बुरे? ये जो हमने बोला ना अपनी जो कमी हो हाथ चक्रा के लिए, बहुत अच्छा लगा बोल के ही. Let us move forward. Now solar plexus chakra, solar center, Manipur chakra. It is the center for self-interest. Is needed for your success. Self-interest मतलब कि स्वेच्छा, अपनी खुद की स्वेच्छा और अपनी खुद का इंटरेस्ट, स्वयं का इंटरेस्ट, जो कि अपने सफलता पाने के बहुत आवश्यक है. It is very much needed for your success, your own success. It's just like that. If you don't have 10 rupees in your pocket, you can't donate 1 rupee. So first try to earn rupees 10. तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर आप ना चाहते हो, तो आपने डोनेट करना चाहते हो, तो आपके पास 10 रुपये होने चाहिए. तो 10 रुपये कमाने के हम सोचेंगे तभी तो 1 रुपये डोनेट करेंगे. तो सेल्फ इंटरेस्ट इज इम्पॉर्टेंट. तो स्कैन योर सोलर प्लेक्सस चक्रा, फील
You feel the solar plexus chakra? If done, please let me know because I'm unable to see anyone. एक लोगों ने बोला हो गया तो हम समझ जाएंगे सबका हो गया. Now Yes, I did. Yeah. that means. Yes. So please touch your solar plexus chakra first and then Agya chakra. So touch your solar plexus chakra like this here between your. Now touch your Agya chakra with your right hand and say I 3 fingers and say I erase, I disintegrate all of the inner obstacles to my big. मैं अपने सारे आंतरिक अवरोधों को मिटाता हूँ, नष्ट करता हूँ जो मुझे धनवान बनने से रोकते हैं. Now, so beat. अभी, so beat. I erase all and disintegrate all of the inner obstacles to become very, very. Now. So beat. And now rescan the chakra, solar plexus chakra. See the change. Bigger, sir. So got the change? And improved confidence. Okay. Let us move forward. और भी किसी कुछ चेंज सभी को दिखा, किसी ने कुछ बताया नहीं. हमने स्कैनिंग के लिए बोला कि एक बोलेंगे सबका हो जाएगा. जी एबिलिटी बहुत हो गई है. नीड मोर इम्प्रूवमेंट. ओके. एनर्जी काफी स्ट्रांग है पहले से. ओके. नीता जी आप कुछ बोल रही थी? स्ट्रांग हो गई है पहले से. शैली जी, माधवी जी. ओके गुड. शैली जी. तो ज़्यादा फील नहीं हो रही सर आज. कोई बात नहीं, हाथ को अच्छे से फ्लिक कीजिए. और स्प्रे है आपके पास, उसे अच्छे से धो लीजिए हाथ को, क्योंकि बार क्योंकि हम अलग अलग चक्रों को स्कैन कर रहे हैं तो कुछ एनर्जीज हाथ में आ जाती है जिसकी वजह से थोड़ा सा फील होने में भी दिक्कत होती है. तो अच्छे से एक बार हाथ धो लीजिए, अच्छे से सेंसिटाइज कर लीजिए तो आ जाइए. वंदना जी, अंशु जी, शिखा जी. सही है सर. ओके. सर नीड मोर इम्प्रूवमेंट. अभी तो थोड़ा और
आगे बढ़ते हैं। अब हम सबको देख पा रहे हैं क्योंकि सबका वीडियो ऑफ है। Okay. Now move forward to navel. Navel is the center. Instinct of knowing. नाभि चक्र जो है वो सेंटर है ऊर्जा को जानने का। हम क्या होने वाला है उससे पहले से जान जाते हैं। इंस्टिंक्ट ऑफ नोइंग। सो द बेसिक चक्र एंड द नेवल एनर्जी सेंटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टिंक्ट इन बिजनेस। मूलाधार चक्र और बेसिक चक्र वो सेंटर हैं जिनसे हम के बारे में जान सकते हैं। जो भी होने वाला है बिजनेस में, गलतियां होने वाली हैं या नुकसान होने वाले हैं, वो हम इस बेसिक चक्र और नेवल थ्रू बेसिक चक्र एंड नेवल चक्र वी आर एबल टू नो where the business is going right now. Is it good or bad, or whatever is going to be next in our energies? What is the energies? We can sense the energies through the basic chakra and the navel chakra. Okay, did you understand? नेवल कंफ्यूजन है तो किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज बताएं। कंफ्यूजन, हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन फॉर नेवल चक्र एंड नेवल चक्र में काफी कार्मिक इशू रहता है सब, और सब कहते हैं कि जैसे वो नहीं करना चाहिए। किसने कह दिया? हाँ, अब तो वीडियो ऑन कर लें, सामने से सामने बात हो जाएगी। यस, किसने बोला था अभी? वो थी ऋषिकेश में, तो उन्होंने कहा कि कई कई जन्म हम लेते, हमारा क्या होता उसमें नाभि चक्र में सारा नेगेटिव फाइल सब जमा रहती थी, इसलिए कहना वो ना करे, खाली जब कभी अस्वस्थ रहे या कुछ ऐसा रहता वो नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से हमारा पार्ट होता है, हमारा क्राउन चक्र हमारा पार्ट होता है, उसी प्रकार से नाभि चक्र भी पार्ट होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नाभि चक्र को स्कैन न कर पाए, ठीक है, न करें, ऐसा कुछ भी नहीं। और जो भी हमारे जो पुराने कार्मिक होते हैं और जो भी हमारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, जिसे हम संचित कर्मा कहते हैं, जिन्हें हमारा प्रारब्ध कर्मा होते हैं, वो हमारे हायर सोल यानी कि 12 चक्र के आसपास होता है, ना कि नाभि पे। नाभि चक्र को मध्य चक्र भी कहा जाता है, जो कि ब्रह्मांडीय चक्र से जुड़ा होता है। ये क्वेश्चन किया था कि नाभि चक्र से ही ध्यान भी होता है। बिल्कुल ध्यान होता है नाभि चक्र से, ना, तो फिर उसमें कोई ऐसा इशू नहीं, नाभि चक्र में जाए तो अपने गुरु इष्ट पर ध्यान करें, नाभि चक्र को उसमें ना करें। नहीं, ये बिल्कुल ही इनप्रैक्टिकल बात है। तो पागल हो गए हो क्या तुम अपना? क्या बात है, कोई यहाँ पे पागल कौन है? तो अंशु जी, इसके कंफ्यूजन में बिल्कुल बंदा रहे। नहीं, कंफ्यूजन मुझे हाँ, और नाभि चक्र को लेकर के, हाँ, तो संचित कर्मा या प्रारब्ध कर्मा या फिर जितने भी हमारे पुराने जन्मों के जितने भी कर्म आते हैं, जो भी हमारी रिकॉर्डिंग्स होती है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हायर चक्र यानी कि 12 चक्र है और हायर सोल के आसपास होते हैं, ना कि नाभि चक्र पे। नाभि चक्र हमारे अर्थ से जुड़ा होता है, यानी कि हमारे फिजिकल रियलिज्म से जुड़ा होता है, जो कि हमारे जाने के बाद, यानी के बाद शरीर को छोड़ने के बाद नाभि चक्र भी उसी प्रकार से तुरंत खत्म हो जाता है, ठीक है। और जैसा कि आपने सोल में पढ़ा होगा, सोल में हमारे जाने के बाद जो तीन परमानेंट सीट्स होती हैं, फिजिकल परमानेंट सीट, मेंटल परमानेंट सीट और परमानेंट सीट। तो जैसे ही हमारा डेथ होता है, जैसे ही फिजिकल बॉडी छूटती है, तो सबसे पहले हमारा फिजिकल परमानेंट सीट जाता है। उसके 13 दिन के अंदर, जिसे लिए 10 दिन और 13 दिन का होता है, 10 से 13 दिन के अंदर हमारा इमोशनल परमानेंट सीट हमसे छूटता है, और उससे 1.25 महीने के अंदर हमारा मेंटल परमानेंट सीट छूटता है।
ठीक है। तो उसी प्रकार से ये सारी चीज़ें जाती हैं और वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर हायर चक्र यानी कि 12th चक्र में या हायर सोल में जाती है। तो नाभि चक्र से इससे कोई रिलेशन नहीं है, नाभि चक्र से कोई भी मतलब नहीं है। नाभि चक्र एज अ सेंटर फॉर इंस्टिंक्ट ऑफ नोइंग, यानी कि एक तरीके का फोरहेड चक्र है जो हमारे फोरहेड चक्र और आगे चक्र में होता है, जो हम इंट्यूशन बिना किसी भी फॉर्म को देखे ही हम इंट्यूशन पा सकते हैं कि हाँ आगे क्या होने वाला है। जो नाभि होता है वो फिजिकल रियलम के हिसाब से क्या होने वाला है, जैसे कि कोई गेम खेल रहा हो या शतरंज खेलने वाला हो, तो हम पता कर सकते हैं फॉर्म के अनुसार कि उसकी अगली चाल क्या होने वाली है। ठीक है, अगला जी बॉल फेंक रहा हो तो हम कैसे बॉल फेंक सकते हैं, हम कैसे मार सकते हैं, या फुटबॉल खेला हो तो किधर गोल होने वाला है। इस तरीके से जो भी फॉर्म्स होने वाले हैं, सामने से किसी ने मेरे ऊपर कुछ फेंका, हमने कैच कर लिया या पकड़ लिया या रोक लिया, तो ये इंस्टिंक्ट ऑफ नोइंग उसके बाद नाभि चक्र के द्वारा होती है, नाभि चक्र के एक्टिवेशन के द्वारा होती है। ठीक जी है। जी और अगर हम ईस्टर्न कंट्रीज़ में जाएँ, चाइना में जाएँ, जापान में जाएँ, वहाँ पे नाभि चक्र पे ध्यान कराया जाता है, क्योंकि उसी की वजह से आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, फिजिकल बॉडी की अवेयरनेस बढ़ती है। आपके तो आगे गायत्री पीछे गायत्री पढ़ने में उसमें नाभि जी, जी, जी। तो ऐसा कहीं पे भी आप बिल्कुल ही कन्फ्यूज़न में ना रहें। जी जी थैंक यू ठीक है? ओके। तो इंस्टिंक्ट ऑफ नोइंग, any confusion between for instinct of knowing except because it was talk in Hindi, but I think we have already learned in level 3 that what is instinct of knowing. So do you remember, Carmen? Instinct of Carmen is instinct of knowing. Carmen used to drink coffee. So instinct of knowing is an energy awareness. We know the form of an in few minutes or seconds. Just like if you are playing games, if you are playing footballs. So if we are having a good playing any sport of fighting, that is kung fu or karate, so the player already knows the second move of the player. Okay, so that is due to instinct of knowing. Okay, that is due to the instinct of knowing. So we must know the energy form which is going to take place in future, in few seconds. Instinct of knowing, that is instinct of knowing. And in Kriya Shakti mein, instinct of business is needed, that is due to the नेवल चक्र. सो नेवल चक्र में इंस्टिंक्ट ऑफ बिजनेस हो जाता है, हम होने वाला है, हमारा जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें क्या होने वाला है, उसमें नुकसान होने वाला है, उसमें फ़ायदा होने वाला है, हमारे ये करने से क्या होगा, हमारे वो करने से क्या होगा. दैट मीन्स कि if we are going in business, if we are going this way, then what will happen to us? It will be loss or profit. This way, if we are going this way, it will be loss or profit. So we know it is due to the instinct of business or instinct of doing in business. Okay. So shall we move forward? No way, it's smartness. Yes, it's a kind of smartness. In physical realm we say smartness, and in energy realm we say instinct of knowing. Okay. Now scan your navel energy center. Scan चक्र को स्कैन करें. Feel the energies of your navel chakra. Imagine your non-dominant hand as your navel chakra. The energies, and feel the energies. So do you know where is your navel chakra situated? आपको पता है आपका नाभि चक्र किधर है? At your navel, isn't it? नाभि चक्र नाभि पे ही है ना? Yes, sir. Okay. So be aware of your navi chakra, that is navel chakra. Now, did you got the energies? आपको एनर्जी मिली नाभि चक्र की? Okay.
एक को मिल गई, सबको मिल गई। बाकी सब नहीं तो वो वही तुमने बोला कि स्कैनिंग को लेके एक ने बोलेगा एक सबका समझ जाएंगे। सो नाउ टच योर नेवल चक्रा विथ योर फिंगर्स। अपने नाभि चक्र को अपने फिंगर्स के द्वारा टच कीजिए। सर Now 3 फिंगर again. टच करना है। हाँ, 3 फिंगर से टच कर सकते हैं। नाउ अगेन टच योर आगे चक्रा। अब फिर अपने आगे चक्र को 3 फिंगर से टच करें। ये दिस 3 फिंगर्स टच and say I erase, I disintegrate all negative programs that prevents me from having millions and millions of rupees, dollars, euros, Swiss francs, etc. So as an Indian, I will prefer millions and millions of dollars. So मैं मिटाता हूँ, नष्ट करता हूँ हर उस नकारात्मक प्रोग्राम को जो मुझे लाखों करोड़ों डॉलर पाने से रोकता है। I erase all negative programs and disintegrate all negative programs that preventing me from having millions of dollars, millions of rupees and dollars, and all global currencies. I erase. सभी ग्लोबल करेंसी मिल जाए, क्या इशू है? आना यस चाहिए। सर, बिल्कुल सर। I erase all, disintegrate all negative programs that preventing from me from having millions and millions of rupees, dollars, euro currencies, and all global currencies. ठीक है, ये सही है। सभी बताएं, सभी लोग यही करें। Carmen, you can also use this protocol that preventing me from having millions and millions of rupees, Canadian dollars, American dollars, euros, Swiss, and all global currencies. So wait. Say, flick your hands. Now, scan your navel. अरे मेरा तो बढ़ गया अच्छा खासा। आप सभी स्कैन कीजिए और बताइए। It increased. Yes sir. So which affirmation did you used, Carmen? Canadian dollars or all global currencies? I prefer euros, but I said any kind of good money, any kind of. That's more wise. That's wiser. Because you we go home, we transform from Canadian to American, from American. So it's like crazy. You have to go to, so you need see of the place where you want to go. So अब तो इस पे आना पड़ेगा। हाँ, again. एक करके सभी से। कार्मेन से हो गया? श्रद्धा जी क्या चेंज हुआ? सर काफी चेंज था, काफी स्ट्रांग एनर्जी आ रही, पहले बहुत लूज एनर्जी आ रही। ओके, माधवी जी आप यू आर म्यूटेड। थोड़ा सा बड़ा और बढ़ सकता है। या यू कैन यूज ऑल करेंसीज, बढ़ जाएगा अपने आप। सर ये टेक्निक हम लोग डेली कर सकते हैं इसे। ये तो बल्कि आपको डेली करना चाहिए। ये सारी टेक्निक जो आज हम सारे चक्रों में कर रहे हैं, ये टेक्निक आपको डेली करना चाहिए। ठीक है नीता जी, क्या चेंज मिला? जी अच्छा, थोड़ा सा बड़ा है। और ये टेक्निक्स आप व्हाट्सएप पे बहुत ग्रुप में अच्छा शेयर, हाँ वो शेयर हो जाएगी, सारी चीज़ें शेयर हो जाएगी। अंशु जी बड़ा है पहले से। तो चेंज लगा? हाँ काफी। ओके, जसवीर जी। सर थ्रू आउट सब में बहुत अंतर आया सर, और इमीडिएट आया। सो ये सिर्फ अफर्मेशन और इरेजिंग टेक्निक्स है। अभी तो हम लोग ने टेक्निक को यूज ही नहीं किया। इट्स मिराकुलस सर, इट्स वेरी पावरफुल। थैंक यू।
agree. नहाने के बाद आप ये टेक्निक करिए और रात में सोने के पहले। दिन भर कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जब आप फ्री हो। और मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ, अभी मैं मार्च टू से टाइम्स लेके ऑफ फ्री सर। सिखा जी बताइए नेताजी। हाँ, मैं बोल रही थी, मैं मार्च से लेके मई 31 को मैं आई हूँ आसनसोल। तब तक मैं ओंटारियो ओटावा में, हम्म, तो काफी कैनेडियन डॉलर खर्चा किया है। ओके। गंगा जी। तो काफी अच्छी एनर्जी मिली है इस वक्त। चेंजेस क्या लग रहे हैं? एनर्जीज तो नो डाउट हम लोग बात करें, लेकिन आपको फील क्या हो रहा है, चेंजेस क्या हो रहा है स्कैन करने में? एफर्मेशन देने से पहले तो थोड़ा लो भी थी, बट आफ्टर एफर्मेशन तो काफी अच्छा इंक्रीजिंग। ओके। शाली जी। तो डेफिनेटली कुछ चेंजेस फील हो रहा है, जैसे अगर हम एनर्जी वाइज बात करें या इमोशन वाइज बात करें, और चेंजेस समझ में आ रहे हैं? तो अभी एनर्जी फील हो रही है सर, बाकी तो लगेगा कोई सर। बात नहीं, फाइन। शिखा जी। शिखा जी कुछ चेंज? ओके। नेहा जी। सर एनर्जी तो काफी और स्ट्रांग भी है, इमोशनल चेंजेस तो भी नहीं पता इससे कुछ। ओके। सिया जी। सिया जी, नाम आपका नहीं पता, आप प्लीज़, ईशा जी शायद, आप प्लीज़ रिस्पॉन्ड करें। हाँ, so you got the change? Forward, move forward. Okay, वहाँ पास अभी और भी क्यों चल रहे हैं शायद। Now, how can you increase your energies? आप अपनी ऊर्जा को कैसे बढ़ा सकते हैं? How can you increase your internal power? आप अपनी आंतरिक शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं? Right thoughts, right speech and right action are strongly connected to our prosperity. सही विचार, सही कृत्य मतलब जो हम करते हैं। अगर हम सही विचारों के साथ सही बोल बोलें और सही एक्शन लें, यानी कि सही कृत्य करें, तो ये आप प्रॉस्पेरिटी हो, हमारे प्रॉस्पेरिटी से जुड़े हुए हैं। So all these three are strongly connected to our prosperity. Your attitude reflects your financial condition. आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो रवैया है, फाइनेंशियल कंडीशन को रिफ्लेक्ट करता है, वो बताता है, दर्शाता है। So maintain positive thoughts. You have to watch what you think. You have to watch what you say, because these energies will affect your reaching your target, will affect your prosperity. आप जो भी सोचते हैं उस पर गौर करें, आप जो भी बोलते हैं उस पर ध्यान दें, क्योंकि इसकी जो ऊर्जा है वो आपको आपके टारगेट तक पहुंचने में मदद करती है और उसे इफेक्ट भी करती है, चाहे वो सकारात्मक रूप से हो चाहे नकारात्मक रूप से, और साथ ही साथ आपके समृद्धि को भी इफेक्ट करती है। अगर आपके विचार और आपकी बोली अच्छी नहीं है तो आपके पास प्रॉस्पेरिटी भी कम होगी और आपके पास अपने गोल तक पहुंचने में भी समस्या आएगी। तो
So maintain positive thoughts. The mind is made to move by two things, prana, that is energy, and desire. जो हमारा मन होता है वो दो चीज से होता है, आगे बढ़ने का कारक बनता है, वो है प्राणा यानी कि एनर्जी, और डिजायर हमारी इच्छाएं. सो प्राणा इज कंट्रोल्ड, डिजायर इज ऑल्सो कंट्रोल्ड. जब प्राण शक्ति कंट्रोल होती है, संयम हम संयम कर सकते हैं, उसमें संयमता रख सकते हैं, तो हम अपनी कर सकते हैं, संयम कर सकते हैं. Therefore, the prana and mind act as one. इसलिए जो हमारी इच्छा है और साथ ही हमारी ऊर्जा दो होने के बावजूद भी एक जैसा एक्ट करती है, बिल्कुल एक जैसी होती है. So as long as the mind is not mastered, so long senses are not mastered. जब तक हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल इच्छा को भी कंट्रोल नहीं कर सकते. So there is lack of standing, the state where our desires are not fulfilled. अगर हम अपने अंदर समझ ना रखें या फिर इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा रखते हैं, हमारी इग्नोरेंस कम होती है, अधिक होती है, तो उस हिसाब से अपने हम डिज़ायर को फुलफिल कर पाते हैं या नहीं कर पाते, यानी कि इच्छाओं को परिपूर्ण कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं. तो टोटल अगर हम इसको एक बात करते हैं, अपने एक कंक्लूजन में आते हैं, तो हम जब तक अपने मन को मास्टर नहीं करते, मन पे काबू नहीं पाते, अपने सेंसेस पे काबू नहीं पा सकते, और जब हम इन सारी चीज़ों पे काबू नहीं पा सकते हैं, तो हम अपने जितनी भी डिज़ायर्स हैं उसको पूरी साथ ही साथ करते हैं. साथ ही साथ हमारे डिज़ायर क्या हैं वो भी ध्यान देने की आवश्यकता है. We have to mind our mind and to master our mind and to master our mind, and we have to master our senses. So if we want to fulfill our desires, first of all we have to see that which kind of desire are we having right now. Is it good or bad? So that your mind energies, your mind affects your desires as well as to fulfill your desires. Maintain positive thoughts and emotion. In order to maintain prosperous, successful, right thoughts and emotion, you must learn to regulate your thoughts and emotion. अगर आप सही और सफलतापूर्वक prosperous thoughts और emotion को maintain करना चाहते हैं, तो आपको अपने विचारों को और emotion को, यानी कि भावनाओं को regulate करना होगा. वो लगातार चलती रहें और साथ साथ maintain रहें. ऐसा नहीं कि आप कहीं पे stuck हो जाएं. नॉर्मल केसेस में हम अपने विचार पे अटक जाते हैं, कहीं ना कहीं अपनी हम कुछ सोचते हुए किसी के विचारों को या फिर कुछ ऐसे ही इनर ऑब्स्टिकल में ही हम अटक जाते हैं. हमें उसको रेगुलेट करना पड़ेगा और साथ साथ माइंड को चलने देना पड़ेगा पॉजिटिव थॉट फॉर्म्स की ओर. इफ़ यू कॉन्स्टेंटली वॉक अराउंड लाइक अ टॉर्पिडो in an unregulated emotion state, allowing your emotions to swing up wildly, then plummet a yo-yo. ये उसी तरीके से एक बात है. अगर हम बिना किसी टारगेट के, बिना किसी विचार के इसी तरह रास्ते में निकल जाते हैं, बिना कुछ सोचे निकल जाते हैं, बस हम चलते ही रहते हैं बिना कुछ सोचे, बिना कुछ, तो हम बिल्कुल आगे पीछे ऊपर नीचे, तो वो हमारा जो इमोशनल स्टेट होता है वो रेगुलेटेड नहीं होता, अनरेगुलेटेड होता है, और हम इसी तरह बिल्कुल निकल जाते हैं पागल के जैसे पागल रास्ते में चलता है, उसका कोई टारगेट नहीं होता रास्ते में, बस वो चलता है. ठीक है, तो उसी प्रकार उसका इमोशनल स्टेट भी नहीं होता. एक ऐसे बन जाते हैं अगर हमारा अपने थॉट्स और इमोशन को रेगुलेट नहीं करते हैं, तो हमें बिल्कुल एक पागल के समान होते हैं, जिनका कोई टारगेट ही नहीं है, जिसका कोई गोल ही नहीं है. तो हमको एक पक्के इमोशनल स्टेट के साथ अपने कार्य को करना पड़ेगा और अपने विचारों को और थॉट्स को और इमोशंस को रेगुलेट करना पड़ेगा, जिससे कि अपने हम गोल को और अपने टारगेट को अचीव कर सकें. सर एक क्वेश्चन. जी बताइए. सर जब हमारे साथ परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हों, तब उस स्थिति में अपने इमोशंस को रोकें और हम कैसे रोकें? जब स्थिति विपरीत होती है तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं हमारे ये हमको जानना चाहिए कि हमारे कुछ कार्मिक ऑब्लिगेशन है. साथ ही साथ हमारे ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हमारी खुद के ज़्यादा रिलेटेड होती है, ना कि कोई बाहरी के द्वारा ज़्यादातर. तो अभी हम लोगों ने जैसे बात की, अभी हम लोग लास्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे कि वी रिमूव ऑल इनर ऑब्स्टेकल्स, वी इरेज ऑल इनर ऑब्स्टेकल्स, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम से होती है वो हमारी खुद से क्रिएटेड होती है, हमारी खुद से कार्मिक होती है.
तो कर्मा को ठीक करने के लिए हमें अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, और वो जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसे हमें समझना चाहिए कि कैसे प्रॉब्लम चल रही है, उस पर हमें बात समझ करके उस जो सिचुएशन है उसको समझ करके उसका हैंडल करना चाहिए। क्योंकि अगर हम समझें तो सारे सिचुएशन के कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होते हैं, और साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति जो भी धरती पे हैं, उनके साथ हमेशा विषम परिस्थितियाँ आती ही आती हैं, तो उससे कुछ जीवन का नहीं है, कार्य रुकता नहीं है। हमें उसका सॉल्यूशन और खोजना पड़ेगा। साथ हमें अपने माइंड को रेगुलेट करना है, इमोशन को रेगुलेट करना पड़ेगा। परिस्थिति है, विषम परिस्थिति है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें उसका पॉजिटिव वे भी खोजना चाहिए। अंधेरे में है तो हमें वहीं से उजाला खोजने की आवश्यकता है। और कुछ पूछना चाहती हैं? और भी कुछ है मन में आपके? सर मन में ये है, जब हम देख रहे होते हैं कि हाँ हमने कभी मतलब अपनी लाइफ का न देख करके दूसरों को जितना एक्सपीरियंस किया है, मैंने ऐसे लोगों को देखे हैं कि अपने जानने में कभी किसी का बुरा नहीं और अच्छे कर्म किए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो उन कर्म को मतलब कभी पता नहीं चल पाता है हम कितना गुड कर्म करें या कितनी चीज़ों को ऐसे जनरेट करें जिससे कि हमको ऑब्स्टिकल्स हैं या पास्ट नेगेटिव जो कर्म है वो हम मिटा सकें या उनको हट सकें। तो एक्चुअल में फिर वो उस स्थिति में समझ नहीं आता है सर कि क्या हो और क्या ना हो, क्या करें क्या ना करें। हाँ, डे 1 में पहले दिन हमने बताया था कि हम जो भी अच्छे कार्य करते हैं, जो भी चीज़ें हम करते हैं, उसके लिए हमें वाइज होना पड़ेगा, चालाकी से काम करना पड़ेगा कि हम जो भी कार्य करें वो सही रास्ते पर जाए। ठीक है। और दूसरी चीज़, जैसे कि अभी कोई किसी की विषम परिस्थिति चल रही है, स्थिति अच्छी नहीं है, और वो व्यक्ति डोनेशन करता है, टाइथिंग करता है जनरेट करने, गुड कर्मा जनरेट करने के लिए। ठीक, लेकिन क्या उसे पता है क्या वो सही जगह कर रहा है? उसके जो डोनेशन है और जो भी टाइथिंग है वो सही जगह जा रही है? वो भी गलती हो सकती है। दूसरी चीज़, हम दुनिया भर के सभी लोगों को क्षमा करते हैं, माफ़ करते हैं। माफ़ी मीन्स, फॉरगिवनेस मीन्स यू हैव टू फॉरगिव एवरीबॉडी अनकंडीशनली। ओके, लेकिन हम अनकंडीशनली सभी को माफ़ करें, लेकिन क्या हम सभी सही मायने में लोगों को क्षमा कर सकते हैं? करते हैं? क्या हम दिल से लोगों को क्षमा करते हैं? नहीं करते हैं। तो वो हम वहाँ मिस्टेक हो जा रहे हैं, क्योंकि वो व्यक्ति वो हमसे कहीं ना कहीं पिछले जन्मों से जुड़े हुए हैं, तो उनकी प्रॉब्लम जो आती है उसकी वजह से हमारे साथ प्रॉब्लम आती है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी कंडीशन के खुद जिम्मेदार हैं। अगर हम पास्ट इनकारनेशन को भूल जाएं तो भी हम प्रेजेंट टाइम में भी हम अपनी कंडीशन के खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उस ऐसे थॉट फॉर्म से अटके हुए हैं जिससे हम बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। हम अपने स्टेट ऑफ माइंड में फंसे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम थोड़ी सी हीलिंग सीख लेते हैं तो हम सोचते हैं कि हमसे बड़ा हीलर कोई नहीं है। अगर हम थोड़े से पैसे कमा लेते हैं तो हम सोचते हैं कि हमसे बड़ा रईस कोई नहीं है। अगर हम थोड़े से स्किलफुल आ जाते हैं, स्किल हमारे अंदर आ जाती है, तो हम सोचते हैं कि हमसे बड़ा स्किलफुल कोई नहीं है। ठीक है। अगर हम चंद पैसे दान कर देते हैं तो हम सोचते हैं हमसे बड़ा डोनर कोई नहीं है। और साथ ही साथ अगर हम किसी एक व्यक्ति को क्षमा करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमसे बड़ा क्षमा करता कोई नहीं है। ये तो शुरुआत है। तो सबसे पहले हमें ये थॉट फॉर्म को अपने अंदर लाना पड़ेगा कि नहीं, दिस इज़ द बिगनिंग, अभी हमें बहुत कुछ हासिल करना है। जब ऐसी सोच को सोचेंगे तभी हम कुछ पा सकते हैं, सकारात्मक। थैंक यू। सो इरेडिकेटिंग नेगेटिव थॉट इमोशंस। सो ये थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, क्योंकि एनीथिंग ठीक से दिखाई नहीं देता। Eradicating negative thoughts, emotions, our unregulated emotions prevent us from reaching our targets, our dreams, our goals, and manifesting our desires. So when we sink into an unregulated negative emotional state, this energy condition prevents us from utilizing the natural reservoir
of vital life force within us and restrict energy from feeling freely flowing into and within our energy systems. Our own negative emotions and negative thoughts thereby impede the strong internal beliefs that we possess, because we have within us an innate ability to materialize almost anything. जब हमारे विचार, हमारी भावनाएं अनरेगुलेटेड, यानी कि हमारी रुकी हुई भावनाएं, हमारे जो एक दृढ़, जिसे हम कहते हैं कंजर्वेटिव, जो एक हमारी खुद ही इमोशन है, जो हम ठीक से उसे रेगुलेट नहीं कर पाते इमोशन को, थॉट्स को, वो हमारे टारगेट से, हमारे ड्रीम से, जो भी हम सपने देखते हैं, हमारे गोल से, और हमारे जो भी मैनिफेस्टेशन हमने करने हैं उसे डिज़ायर्स के, उसको परिपूर्ण करने से रोकती हैं। क्योंकि हम एक ऐसे निगेटिव इमोशनल स्टेट में बैठे हुए हैं, उसके अंदर पूरी तरह से डूबे हुए हैं, जहाँ पे जिसकी ऊर्जा हमें उस वाइटल लाइफ फोर्स, यानी कि उस ऐसी ऊर्जा में जाने से, उसको पाने से रोकती है, और जो हम पूरी तरह से पूरी तरह से मुक्त होकर के एनर्जी में फ्लो कर सकें, और साथ ही साथ अपने एनर्जी सिस्टम में उस मैनिफेस्टेशन वाली ऊर्जा को अपने अंदर रेगुलेट कर सकें। क्योंकि एक छोटा सा निगेटिव इमोशनल स्टेट हमारी जो फ्री एनर्जी है, जो हमारे मैनिफेस्टेशन एनर्जी है, जो हमारी बॉडी में घूमनी चाहिए, वो नहीं आ पाती, क्योंकि वो एक ऑब्स्टिकल बन जाता है। और हमारे निगेटिव इमोशंस, हमारी नकारात्मक भावनाएं और जो विचार हैं, वो हमेशा हमारे कहीं ना कहीं एक बॉडी में, हमारे साथ ही साथ हमारे इंटरनल बिलीफ, जो हम कभी कभी कुछ बिलीव करते हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं हमारे एनर्जी सिस्टम में आता है, जो हमारे किसी भी चीज़ को, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ को मैटेरियलाइज होने से रोकता है। तो कहीं ना कहीं हमारे निगेटिव इमोशनल स्टेट जो अनरेगुलेटेड हैं, उसको हमें बदलना होगा, अपने विचारों को हमें मुक्त करना होगा, अपने विचारों को छोड़ना होगा। जिसे हम कहते हैं, we say, if you want to regulate your negative emotions or thoughts, you must have to practice I release. I release means आपको मुक्त करना होगा अपने हर नकारात्मक विचारों से, अपने सारे अनरेगुलेटेड नेगेटिव इमोशन से आपको मुक्त करना होगा, रिलीज़ करना होगा। जैसे आप सारी चीज़ों को रिलीज़ करेंगे, आप अपने आप को मुक्त पाएंगे। We'll do an exercise of I release meditation or exercise by tomorrow, and we'll see the change. So when you are excessively emotional, you become stuck in chaotic emotional state. जब भी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो आप एक बहुत ही chaotic इमोशनल स्टेट में पहुंच जाते हैं, आप उसमें फंस जाते हैं। आप किसी को you cannot respond rationally and may not be able to read a situation clearly. आप बहुत ही रैशनल रिस्पॉन्ड करते हैं, साथ ही साथ उस सिचुएशन को आप ठीक से पढ़ नहीं पाते जो आपके साथ प्रेजेंट में चलती है। So one's intuitive ability to discern between nonsense and nuances actually, or subtle differences may be affected. तो आपकी जो इंट्यूटिव एबिलिटी है, वो एक तरीके से आप उसे पढ़ नहीं पाते हैं। उस आपकी जो इंट्यूशन की एबिलिटी होती है, वो आप उसे समझ नहीं पाते हैं, और कहीं ना कहीं हम अपनी इमेजिनेशन को, अपने उस नकारात्मक चीज़ों को वो पढ़ना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि वही हमारा इंट्यूशन आ रहा है, वही चीज़ें, वो निगेटिव चीज़ें आ रही हैं। While your passion for your work is guided by intense desire to reach your goals, your emotion needed to be regulated and your mind should be clear. अगर आप अपने गोल को पहुंचना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने गोल तक पहुंचने के लिए बहुत ही इंटेंस डिज़ायर होना चाहिए, आपको तीव्र इच्छा होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपका मन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपके इमोशंस रेगुलेटेड होने चाहिए। आप कहीं पे इमोशन होकर बैठे ना हो, आपका इमोशन रेगुलर हो और साथ रेगुलेटेड हो, साथ ही साथ आपके मन बिल्कुल क्लियर हो। जब ये सब सारी चीज़ें क्लियर होगी, आप अपने गोल को आसानी से पहुंच पाएंगे, जो अपने टारगेट को आसानी से देख सकते हैं और उसे पहुंच सकते हैं। If your emotional state is unregulated, you will probably miss many opportunities in your life because you will not recognizing them, or
because you will be unable to act in a timely manner in order to take an advantage of important opportunities. अगर आपका इमोशनल स्टेट अगर ठीक ना हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर सकते हैं, क्योंकि आप उन्हें समझ नहीं पाते, उन्हें पहचान नहीं पाते। और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को समय के अनुसार रिस्पॉन्ड न कर पाएँ और उस जगह का, उस इस अपॉर्चुनिटी का आप एडवांटेज न पाएँ, उसका सही आप एडवांटेज, उसके सकारात्मक चीज़ों को आप नहीं पा पाएँ, उसका एडवांटेज ना ले पाएँ, उस अपॉर्चुनिटी को गैदर न कर पाए, अपने आप ले पाएँ। तो इमोशनल स्टेट होना बहुत आवश्यक है अनरेगुलेटेड। सर कभी कभी हमारे साथ में, मतलब हम सबके साथ ऐसे होते हैं कि हम लोगों के पास में 2 ऑप्शंस होते हैं कि हाँ हमें एक फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन को यूज करना होता है, बट हम ये डिसाइड ही नहीं करते कि हमारे लिए ऑप्शंस कौन सा बेटर है। तो उस स्थिति में हम इस चीज़ को फेस कर रहे हैं कि हाँ कभी कभी डिसीजन गलत हो जाते हैं और इन चीज़ों को फेस करना पड़ जाता है हमें। एग्जैक्टली वही बात है, ये एग्जैक्टली वही बात है, अनरेगुलेटेड थॉट्स एंड इमोशन, अनरेगुलेटेड थॉट्स एंड इमोशन। अगर हम हमारे इमोशंस रेगुलेटेड नहीं हैं और हमारे थॉट्स रेगुलेटेड हैं, निगेटिविटी से भरे हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि हम सही अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम भावनाओं सोचना शुरू कर देते हैं, ना कि दिमाग से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम अपना कि मेरे पास एक ऑप्शन आया, आज से कुछ समय पहले एक ऑप्शन आया कि मुझे एक जगह वर्कशॉप करनी है। मैंने कुछ सोचा नहीं, और जिसने वर्कशॉप कराना था उसने बोला, सर आई एम वेरी न्यू इन दिस एंड आई डोंट नो एवरीथिंग एंड एवरीबडी मेड मी फूल, सो प्लीज़ हेल्प मी एंड आई वांट टू ऑर्गेनाइज अ वर्कशॉप। सो आई सेड ओके, देन आई बिकेम इमोशनल that for that person that okay that person may wants my help, actually that person needs my help, वो व्यक्ति मेरी मदद चाहता है। मैंने कहा ठीक है, I will do it because I became emotional for them, so I didn't use my mind। उस वक्त हमने अपने दिमाग को यूज़ नहीं किया and I went there and it was total loss for me। आना जाना सब वेस्ट, no workshop, nothing, सब कुछ हो गया। तो that is due to the your unregulated emotions। तो ये हुआ, ये सभी के साथ होता है, मेरे साथ हुआ। तो अगर हम इमोशन में आ जाते हैं, अपने विचारों को कंट्रोल नहीं करते, तो ऐसा होता है, सभी के साथ होता है। तो आपको अपने माइंड का हमेशा इस्तेमाल करना होगा, और माइंड आपका जब क्लियर रहेगा, आपके इमोशंस क्लियर रहेंगे, तो आपकी सारी चीज़ें सही होगी, आप उसे सही तरीके से समझ सकते हैं। आपका माइंड खुला होना चाहिए। तो सर अपने खुद की हीलिंग करके हम इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं? नो नीड ऑफ हीलिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये इरेजिंग टेक्निक कीजिए, आपके लिए काफ़ी है। इफ यू प्रैक्टिस दिस इरेजिंग टेक्निक, सो वी कैन मॉडिफाई 90% ऑफ द नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस इनटू पॉजिटिविटी। Thank you. So only this few erasing techniques are needed. So I think Carmen has taken the screenshot photograph of all these practices which we had done today. I did, but I will listen after, because sometimes we have. So the pictures are not clear, but after you post it, I posted the pictures like that for now, but after you put the link to video, I will listen again and make pictures in a way clear. Okay, So sure. they are temporary pictures, let's put it this way. Yeah, they're temporary pictures, but it is for the practices for all of you, because it's very Yes. important if you practice this daily to regulate your thoughts and emotions, Yes. because unregulated thoughts and emotions may cost you non-manifestation of your manifestation, Kriya Shakti. Sir, how probably we can write it, and because it will be nice to have print it out and Yeah. put it, just to remember over the day. I might need Good. this one. गुड आइडिया। सो एवरीबडी प्लीज टेक अ प्रिंट आउट। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस जो भी आज भेजा जाएगा उसे आप कल से भेजा गया उसे प्रिंट आउट लें, ताकि आप उसे डेली प्रैक्टिस कर सकें।
Good idea, Carmen. Thank you. I think. Welcome. I didn't know it was a It's a good idea. So, राज के बारे में हम जाने, तो जब हम इमोशनली जहाँ से वीक होंगे तो हमें पता लगेगा कि ये चक्रास मेरा भी इम्बैलेंस है, तो वो दिन में कितना भी बार कर सकते हैं इसको हम इरेज को। वो तो है, कभी भी हम कर सकते हैं। अब जो भी निगेटिव, जरूरी नहीं है कि चक्रों की इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें। अगर हमें जो भी निगेटिविटी मन में आती है तो आप निगेटिव एनर्जीज को, निगेटिव थॉट्स को आप इरेज कीजिए, ना कि हमें चक्रों से करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई चक्रों की जरूरत है। अभी तो बहुत प्रैक्टिस के लिए था, लेकिन आप तो डायरेक्ट उस चीज़ को कर सकते हैं निगेटिव, क्योंकि हम उस इमोशंस को हटा रहे हैं, मेमोरी से हटा रहे हैं। सर स्पेशली थ्रोट चक्र और आंजरा चक्र पे वर्क करने की जरूरत है। अंजना नहीं, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र। हाँ बिल्कुल, उसी पे कार्य करने की आवश्यकता है। एनीबडी मोर क्वेश्चन? नेहा जी, शैली जी, वंदना जी, शिखा जी, अंशु जी, माधवी जी। नो क्वेश्चन सर। कुछ समझ में आया माधवी जी? जी जी। चलिए, कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज पूछ लीजिएगा। शिखा जी बताइए, कुछ पूछ रही हैं आप? मैं पूछ नहीं रही सर। ओके, वंदना जी, शैली जी, अंशु जी, सब क्लियर है। ओके गुड। कभी कभी हमको ही क्लियर नहीं होता, इसलिए पूछना पड़ता है। अंशु जी, वंदना जी, शर्ली जी। ओके, अभी तक सब क्लियर सर। अभी तो फिलहाल सब क्लियर है। ओके, चलिए आगे कोई भी होगा तो प्लीज पूछ लीजिएगा। नेहा जी। जी सर, अभी तो सब क्लियर है। ओके ओके, तो फिर हम कल के लिए रखते हैं और कल राइट स्पीच पे आते हैं। आज इमोशंस पे आगे, कल राइट स्पीच पे आएंगे। तो ओके, देन लेट्स गिव अ थैंक्सगिविंग। क्लोज योर आइज, कनेक्ट योर टंग टू योर पैलेट। आंखें बंद करें, जीभ को तालू से लगाएं। सुप्रीम गॉड, डिवाइन फादर, डिवाइन मदर, to my guru, to all the holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels and spiritual helpers, to all the beings of love and light, to my heart, soul and divine self. We thank you for divine guidance, divine healing, help, protection, purification. We thank you for your blessings, for making me your divine channel to learn and understand the deep techniques and teachings of Kriya Shakti manifestation. We thank you for our blessings with deepest gratitude, respect and love. We thank you in full faith. We thank you. Now you all may open your eyes with a big smile. Thank you very much. Atma Namaste to all. आत्मा नमस्ते।